So what happened was we were discussing this chapter of simultaneous linear equation in two variables. Then what happened? We introduced. Uh, I told you about the introduction and method of solving the questions. Then I told you about the introduction and method of solving. Wait, I can't help you like this. See, this is a mathematics class, so please wait for that thing. Huh? If time permits, then I'll help you out. Otherwise, send me your question, right? Because it's not possible for me. It's not possible for. So we learned about the equation. We learned about different graphs of the equation. We learned that the standard form of a linear equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then further we learned about how to solve the graphical solution of the linear equation. We found that the points where the two graphs intersect, the points where the two graphs intersect, that is called as that is called as the solution of the linear equation. We also know that the linear equation has a linear equation. Its graph will be a straight line. So when its graph will be a straight line, now we have only three conditions for a graph. Either for a straight line, either they will intersect at one point or they will not intersect. That is, they will be parallel to each other or they will be overlapping on each other. Now, based upon this, we will define the solvability. But this is a graph which looks like when the lines are not when the lines are not intersecting, when the lines will not intersect. That is, they have no solution. Next, I'm having when the lines have infinitely many solutions. When the when this is a linear equation in two way. When the graphs have infinitely many solution, so this is the graph and this will be the graph of infinitely many solutions. Then we learned about the methods of solving. Then we learned about the methods of solving. In that, we learned about this substitution method. Then we learned about elimination of the coefficients. Then we learned about cross multiplication. The other day, we were doing some questions on cross multiplication. Then I told you that these type of questions might come where you have to find the area. We also learned that it's very easy to find the area. In the coordinate geometry, when we will be studying, we will be specifically learning how to find the coordinates and how to find the area according to the coordinates. x1, x2, y1, y2, x3, x3, y3 ये जब हमें मिला x3, y3 ये जब हमें मिला होगा, तब तो हम कोऑर्डिनेट से एरिया निकाल ही लेंगे. But here, when I'm not knowing the formula, then how can I solve this quickly? And moreover, here if you go and apply your formula, then that will become too long. That will become a very long method. Okay. Now the next will be this: when the graphs are parallel to each other, when the graphs are same thing. Here we have no solution. Next I'm having the okay. Now this was the question that we were discussing. We discussed this question using the substitution method, and we also discussed this question using the elimination method. But now I want to discuss this question using the cross multiplication method. Okay. Before that, just wait. So let us discuss what we can do. सबसे पहले सर एलसीएम ले लेते हैं. मुझे तो एलसीएम लेना आसान लग रहा है. तो मेरे को दिखता है बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू वाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी. और इधर मेरे को मिला बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू ए बी. ठीक है, अभी भी कुछ बन नहीं रहा है. अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम दोबारा कुछ करने नहीं जाएंगे. जो भी आप. हाँ बोलिए. अब अपन दोबारा कुछ नहीं करने जाएंगे. जो भी हमें करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, वो अपन यही करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. नाउ व्हाट आई विल डू, सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा किसी भी केस में. एक काम करते हैं, बी वाले को एक्स वाले को एलिमिनेट करते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज I will just
आई विल जस्ट डू b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस साइन था तो ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स तो जीरो हो जाएगा। सो देर इज नो नीड टू राइट दिस, देर इज नो नीड टू राइट दिस। मिलता क्या है हमें ध्यान से देखना, मुझे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी multiplied by y is equal to minus a square b minus of ab square plus of 2ab square। फाइनली जब अपन ने सॉल्व किया तो देखो मुझे क्या मिलता है, फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है यहाँ पे, आई विल हैव y multiplied by minus a square plus ab will be equal to y multiplied by minus a square plus ab will be equal to ab square minus a square b, ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। कुछ टर्म्स तो पक्का कैंसिल होने वाले हैं यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है। तो एक काम करो, a को कॉमन ले लो यहाँ से, ए वाई विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ से अगर मैं ए बी कॉमन लेता हूँ तो ये को मिलेगा b माइनस ए। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास b। The value of y is equal to b. Now calculate the value of a and enjoy. The value of y will be equal to b. Similarly, you can calculate the value of a. Yes, you guys have given the correct answer, that is x will be equal to y is equal to b and x is equal to, I think कितना आंसर आया है, माइनस ए। जो भी है इसको आगे कैलकुलेट कर लेना, y इक्वल टू बी आ रहा है, x इक्वल टू शायद माइनस ए आएगा, वॉट एवर इट इज, प्लीज सॉल्व इट एंड चेक इट। हाँ, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, हाँ बोलिए सर आप वो जो लास्ट सेकंड स्टेप में सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी आया था सर, वो बोल सकते हैं कैसे आया? कौन सा सर? वो जो ऊपर स्टेप किया है ना, वो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा मैंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके x वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया था। तो मल्टीप्लाई मैंने क्या किया था, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई किया था। आई मीन जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने b से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मेरा ये रिजल्ट आया था। ठीक है, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू राइट एवरीथिंग अगेन। एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन। सर ये प्लस 2ab स्क्वायर वो भी तो आया था ना सर साथ में? तो प्लस 2ab स्क्वायर लिखा तो है यहाँ पे, प्लस 2ab तो सर स्क्वायर। वो वाला नहीं सर, वो तो पता है सर, ऊपर ऊपर। हाँ तो वाई बेटा पहले ये आया था, उसके बाद ये वाला स्टेप आया था बेटा। हाँ सर वो तो पता है, वही पूछ रहा हूँ सर, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस दोबारा करवाओगे, दोबारा करवाओगे, सुन लो, जब समझाता हूँ तो पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। जब समझाता हूँ तो वो माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर वो ऐड हो जाएंगे ना, तो सर वो प्लस ए बी रुक जाओ यार, इसको बताने दो। बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस 2ab। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो तो इट विल बी माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी करूंगा तो इट विल बिकम माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया। अब जो है इसको रब करने दो, नहीं तो फिर तुम कुछ पूछोगे। उसके बाद जो है, अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई वाई will be equal to 2ab square
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। क्या समस्या है इसमें? क्या समस्या नहीं है सर, भाई? कोई समस्या नहीं है। कितने बार तुमको समझाया? जब समझाया करूं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ध्यान दे दिया करो, उसके बाद बाकी चीजों पे ध्यान देना। क्या तुमको डाउट क्या आ रहा था ये तो बताओ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि तुमको डाउट क्या आ रहा था। एनीवेज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this is the same, this is the next question. Now these type of questions are very important. यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तो इन्होंने दे दिया कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, बट इवन इफ इट इज नॉट गिवन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, देन आल्सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को किसी मेथड से नहीं कर सकते। यू हैव टू एज्यूम समथिंग। दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस reducible to simultaneous linear equation. Okay, so what I will be doing is, okay, good, what I will be doing is I will take 1 upon 3x plus 4y is equal to u and 1 upon 4y minus 3x is equal to v. Darsh, please look at the board, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। पूरा करने के बाद में आप बोलोगे कि सर दोबारा बताओ, तो आई माइट नॉट बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सो प्लीज प्लीज बी, हाँ, आई हैव सीन योर मैसेज। हाँ, हम बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर एक डाउट ही सर ये था कि सर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम ये 1 बाई जो भी कॉमन होता है उसको u और v सपोज करते हैं, लेकिन सर अगर डायरेक्टली जैसे कि बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई सर करके डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट ही हो कर दे जाएगा। तो सर डायरेक्टली मतलब तो हो भी आंसर जाता है तो बेटा, डायरेक्टली हो जाता है, बट आप, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि सर आप सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और वो कर सकते हो। सी दैट इज द मेथड दैट यू विल बी यूजिंग इन while solving a question in your test or while solving a question in your competitive exam. बट स्कूल का एक सेट पैटर्न होता है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द टीचर्स इन द स्कूल आर यूज टू लुक कि इस टाइप का जहां पे भी क्वेश्चन आएगा वो उनको ये चाहिए कि आप 1/3x प्लस 4y को यू मानो, इसके अलावा आप कुछ भी कर दो, दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। दैट इज अ सेट पैटर्न एंड दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सिस्टम, दैट हम ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गो अहेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या, मैं भी इतना टाइम नहीं लगाने वाला। मैं दूसरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा, रिजल्ट लूंगा, आगे बढ़ूंगा, खत्म। मैं खुद इतना नहीं करने वाला हूं। बेसिकली वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग हियर। लेकिन क्या होता है बेटा, 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो स्टिल बहुत छोटे होते हैं। कुछ होते हैं उसमें मेच्योर, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अभी भी बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल होता है। लेट अस सी द क्वेश्चन। ठीक है, अब u और v मान लिया। नाउ व्हाट आई विल हैव, आई एम इरेजिंग। नाउ व्हाट आई विल हैव, 42u प्लस 52v इज इक्वल टू 5 एंड 7u प्लस 13v इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। मुझे क्या मिला, 42 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 35u। 35u सर इज 14 बचेगा 42 में से, 4 से अच्छा मल्टीप्लाई 42 में से 28 गया, सॉरी आई एम सॉरी। तो 28u will be equal to 1, 28u will be equal to 1। 14u 14u कैसे बचेगा? हाँ ठीक है यार, सॉरी यार। That 42 हाँ minus ठीक है 28 ठीक है हो. ठीक है ठीक है ठीक है, एक्चुअली आई वाज वरीड अबाउट समथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14u अभी ठीक है, विल बी इक्वल टू 1, दैट गिव्स मी u इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, अब u की जगह 1/14 रखे यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 13v इज इक्वल टू 1, दैट गिव्स मी v इज इक्वल टू 1/16। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। आधे लोग आप में से इस क्वेश्चन को इतने पे ही करके छोड़ आएंगे और बोलेंगे कि वाह मेरे तो नंबर आ गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्यों क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि बेटा हमने u को कुछ माना था
3x plus 4y को मैंने u माना था. Now I will have 3x plus 4y is equal to 14 and 4y minus 3x is equal to ये कितना आया था 16 आया था, will be equal to 16. अब यहां से सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करेंगे? 3x plus 4y है, 4y minus 3x है. बड़ी सीधी सी बात है, दोनों को ऐड कर दो. ठीक है. 3x plus 4y is equal to 14 and 4y minus 3x is equal to 16. दोनों को ऐड कर दो, आपको मिला 8y is equal to 30. तो you will get the value of y. Similarly, you will get the value of x also. ठीक है. So this is how माइनस में 4y minus 3x 26 आएगा. क्या 1/26 1/26 आएगा ना. हाँ ठीक है 1/26 आएगा, वही मेरे को लग रहा था. ठीक है. So this will be equal to 1/26. तो यहाँ से क्या मिला? 8y is equal to 40. So y will be equal to 5. y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू -2 आएगी. From here 8y is equal to 40. That gives me y equal to 5. And if y equal to 5, that gives me x की जो वैल्यू आई वो आई -2. So this is how the questions are to be solved. तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. कुछ मिस्टेक्स हुई थी क्वेश्चन में, तो भाई ठीक है, टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लेकिन आप लोग ऐसी गलतियां मत करना. ऐसा मत करना कि भाई आसान क्वेश्चन है तो मिस्टेक्स नहीं होंगी. डोंट टेक योर एनिमी एवर लाइटर. मिस्टेक्स होती है भाई, मेरे से भी मिस्टेक होती है, मैं कोई आसमान से उतर के तो आया नहीं हूँ. और देखो मिस्टेक्स हुई अभी सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द क्वेश्चन बाय cross multiplication method. This will be the last question. No, time is up. Now we will switch on to your polynomial chapter discussion. So now theoretically 90% of the chapter is over. Solvability part is left, that I will be completing in your next class. Now please start solving your questions so that we don't lose much of the time in discussing this. So please start solving your module. Okay. Now I will stop here and we will switch on to that thing, polynomial discussion.